to our YouTube channel Heartron Skill Center near Fountain Chowk, Yamuna. Our center code is 034. I am Ankit Sharma. स्टूडेंट्स हमने कल के लेक्चर में HTML के टेक्स्ट यूज किए थे, HTML के स्टाइल्स यूज करके देखे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने HTML के कलर्स यूज करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए एलिमेंट्स को। सपोज कीजिए मुझे कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो मैं इसमें बी लिखूंगा ऐसे। अब मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। इटैलिक यूज करना है तो उसके लिए आई यूज होगा। एम्फसाइज टेक्स्ट लिखना है तो EM यूज होता है। ये स्टूडेंट्स अलग अलग फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। एक एग्जांपल आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ये सारे एलिमेंट्स आपको लिख के दिखाऊंगा। हम शुरू करते हैं अपने पहले एग्जांपल से। सपोज कीजिए मुझे एक टेक्स्ट को पर्टिकुलर 3 पैराग्राफ लिए मैंने, जिसमें मैं पहले पैराग्राफ को बोल्ड करूंगा, दूसरे पैराग्राफ को इटैलिक और तीसरे पैराग्राफ में मैं सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा और सुपरस्क्रिप्ट। तो वो कैसे यूज करेंगे हम? डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML हमारा किस लिए यूज होता है? डॉक्यूमेंट के टाइप को बताने के लिए। फिर उसके बाद HTML next is body. Now let's start with the paragraph. I have written paragraph. After that I have put in a bold tag there. I am writing this is a bold text. We are closing the bold text with forward slash. Now the paragraph with forward slash. Starting on to the next paragraph, I have written this is italic. This is italic. And I have closed here italic tag. I have started its start tag, it's ended. I'm now closing the paragraph tag again. Now I'm putting another paragraph. Writing this is, suppose I have written sub. So subscript tag close with forward slash and sub and superscript. So we'll write soup. Now superscript and closing the superscript tag with forward slash soup and then closing the paragraph tag. After that we are closing body tag, then HTML tag. Now I'm saving this program with Ctrl+S. I'll be saving it by the name, suppose text, or I may be writing formatting .html. Saving it on desktop. Now this is the formatting element. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें पहली चीज तो थी बोल्ड। तो जो मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा था वो बोल्ड आ गया, दूसरे में मैंने इटैलिक में लिखा था तो ये इटैलिक में आया। अब जो उसके बाद लिखा था दिस इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या किया था, दिस इज से पहले सब शुरू किया था और सबस्क्रिप्ट लिखने के बाद उसके सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। एंड के बाद मैंने सुपरस्क्रिप्ट लिखा। तो अब ये देखिए इज से नीचे सबस्क्रिप्ट आ रहा है, यहाँ पे यहाँ ये रहा सबस्क्रिप्ट और एंड के ऊपर आ रहा पावर में। तो जो पावर में आ रहा है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं और जो बेस में आ रहा है उसको सबस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स बताता हूँ। वो फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स हम कैसे यूज करेंगे। विद डिस्क्रिप्शन HTML formatting elements. The first one is bold B. So bold the text
very first thing that it is not case sensitive. So we may write it in capital letters or in sentence case. Okay. Now strong is basically used for important text. After that, third one, I for italic text. Fourth one is EM. EM is basically used for emphasized text. Emphasized text. First one is mark, just to mark the text. Mark text. Sixth one, small, for smaller letters. Smaller letters, or it might be text. Seventh one is DEL, just for deleted text. Now coming on to the eighth one, INS for inserted text. Inserted text. Ninth one, which we have used earlier, that is sub, for subscript. And the last one is sub or sup, SUP, for superscript. These are the basic and very easy formatting elements which are being used in HTML. So let's start with the bold text first. I'll be writing one program and I'll be using these formatting elements one by one in the same program. So let's start. Our first program is for bold text. We'll be writing the same program, doc type, HTML, body, paragraph. So I will be writing this as my normal paragraph, just because I haven't quoted any kind of element in this, so I'll be writing this as a normal paragraph. Suppose I am creating another paragraph with bold text tag, so I have written B here. This text is bolder than previous one. I'm closing the bold tag here, closing the paragraph tag here. Now closing the body tag, closing the HTML tag. Now it's saving with Ctrl+S. I've been saving this program again in formatting.html. So let's start with formatting again. So type HTML, Ctrl+S, F5 for refreshing. तो स्टूडेंट हमने इसमें क्या किया था, पहला पैराग्राफ जो लिखा था मैंने लिखा था दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, तो वो ऊपर लिखा दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, और उसके नीचे जो मैंने लिखा है उसमें लिखा है मैंने दिस इज बोल्डर देन प्रीवियस वन। बोल्डर देन प्रीवियस वन से पहले मैंने बोल्ड टेक्स्ट लगाए हैं। बोल्ड टेक्स्ट मैंने कब लगाया, पैराग्राफ स्टार्ट करने के बाद और पैराग्राफ खत्म होने से पहले, जहां तक मैंने अपना कंटेंट या फिर अपने कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ लिखा है वहां तक मैं बोल्ड टेक्स्ट लगाऊंगा जहां तक मुझे बोल्ड की रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं बोल्ड टेक्स्ट को बंद कर दूंगा। तो हमारा बोल्ड टेक्स्ट ऐसे यूज होता है। अब बोल्ड टेक्स्ट के बाद सपोज कीजिए मुझे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिखना है। द स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एंड बोल्ड टेक्स्ट आर सेम बट हैव डिफरेंट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ जैसे मैंने लिखा हुआ पहला दिस इज माय नॉर्मल पैराग्राफ, उसको वैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी की जगह स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग और दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गर देन, मैं लिख देता हूँ इसकी जगह स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियस वन। अब यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग के साथ इसको क्लोज किया, उसको कंट्रोल एस से उसी फॉर्मेटिंग डॉट एचटीएमएल के अंदर सेव किया। सेव करने के बाद मैंने वापस किया अपने पेज पर, इसको F5 क्लिक किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का एक ही काम है, बट हम अलग अलग एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं उसको। जैसे ऊपर वाला वैसे ही सेम रहा, और नीचे जैसे मैंने स्ट्रॉन्गर लिखा था तो ज्यादा फर्क नहीं आया, बट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लगा है तो हमें लगाकर एक बार आपको चेक कराना था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज I and EM. I stands for italic and EM stands for emphasized text. So let's start. अब इसमें पहला पैराग्राफ मैंने दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ लिखा, दूसरे में मैंने लिख दिया I, और मैंने यहाँ पर भी I किया, कंट्रोल S। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट इज italic then the previous paragraph। ओके, कंट्रोल S, वापस उसी पेज पे F5 से रिफ्रेश। अब ऊपर वाला नॉर्मल पैराग्राफ लिखा है, नीचे वाला आ गया थोड़ा इटैलिक। तो इटैलिक लगाया मैंने, इटैलिक एलिमेंट, इटैलिक आ गया। अब एम्फसाइज में क्या होगा, एम्फसाइज भी यही होता है, ई एम लगाया मैंने आई की जगह, और यहाँ पर आई की जगह ई एम से इसको बंद किया। अब इटैलिक की जगह एम्फसाइज लिख दिया। कंट्रोल एस, उसके बाद F5। तो यहाँ पर एम्फसाइज लिखा आ गया। तो हमारा जो था बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक जैसा, इटैलिक और एम्फसाइज एक जैसा। अब यूज करते हैं स्मॉल, ठीक है। अब स्मॉल कैसे यूज करेंगे हम, बॉडी, अब मैंने ये पैराग्राफ हटा दिया यहाँ से। बॉडी में मैंने लिखा H2, अब कैप्स लॉक में HTML स्मॉल स्मॉल और फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्मॉल को किया मैंने बंद। उसके बाद मैंने लिखा फॉर्मेटिंग और एक्सट्रैक्ट को फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश के साथ किया बंद। कंट्रोल एस, वापस आया अपने गूगल क्रोम पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें जो HTML लिखा है, अब मैं फॉर्मेटिंग को भी कैपिटल में लिख के दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल एस, वापस गूगल क्रोम पे गए हम, F5। अब जो HTML है वो H2 टैग में लिखा हुआ, फॉर्मेटिंग लिखा है वो भी H2 टैग में लिखा हुआ, और जो स्मॉल टैग है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो स्मॉल में लिखा हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मार्क्ड एलिमेंट्स में। मार्क्ड एलिमेंट्स में क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल जहाँ लिखा है वहां पे मार्क लिख देंगे, जस्ट टू चेक व्हाट हैपन। यहाँ पर मैंने टैग शुरू किया मार्क, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा मार्क, और फिर मार्क टैग को किया मैंने यहाँ पर बंद। यहाँ पर मैंने लिखा मार्क, कंट्रोल एस, और यहाँ से जाकर इसको किया रिफ्रेश। तो HTML वैसा आया। अब जिस चीज को मैंने मार्क किया था, जो सेंटेंस या पर्टिकुलर लाइन या कुछ भी मैंने उसमें लिखा मार्क्ड के बीच में, वो मार्क्ड आएगी। इसको बोलते हैं मार्क्ड फॉर्मेटिंग एलिमेंट। अब नेक्स्ट है डेल, डेल स्टैंड फॉर डिलीट। तो अब मैंने क्या किया, इसमें H2 हटा दिया। सपोज आई हैव रिटन अ पैराग्राफ हियर, द del
element represents deleted or removed text, closing with the forward tag. Now again writing a paragraph, my favorite color is, अब यहाँ पर मैंने डिल लगा दिया, ब्लू डिल बंद और रेड, फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ पैराग्राफ टैग को किया क्लोज, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट इसमें जैसे मैंने लिखा माय फेवरेट कलर एज, जो डिलीटेड में लिखा है दैट मीन्स ब्लू लिखा है, उसके ऊपर एक लाइन लगी आएगी और रेड मेरा करेक्टेड में होगा। तो इसको सेव किया, कंट्रोल एस से वापस अपने पेज पे आया, F5 या फिर यहाँ से भी रिफ्रेश करते हैं। पैराग्राफ टैग शुरू, पैराग्राफ टैग क्लोज, कंट्रोल एस, F5। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो डिलीट del element represents deleted remove text, तो my favorite color is blue को इन्होंने एक लाइन लगी है और रेड पे, that means it is deleted element। Now moving on to the inserting element। तो इसमें मैंने पैराग्राफ शुरू किया and I am writing the element represents inserted text, that means added text। फॉरवर्ड स्लैश के साथ पैराग्राफ को किया क्लोज, अगला पैराग्राफ सी, I have again written my favorite color is, and I am putting this color in forward slash के साथ ends को बंद is red। पैराग्राफ टैग को क्लोज किया, कंट्रोल एस और वापस फ्रॉम पे F5। अब ये देखिए इंसर्टेड को इसने पीछे से अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दिया, दैट मीन्स ये एंड एलिमेंट है। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको स्टूडेंट्स मैंने पहले एग्जांपल में बता दिया था, सबस्क्रिप्ट क्या करेगा उसको नीचे लिखेगा, सुपरस्क्रिप्ट करेगा पावर में लिखता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, टेक्स्ट एलिमेंट्स जो फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें हमारा पहला था बोल्ड, फिर स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, मार्क्ड, स्मॉल, डिलीटेड टेक्स्ट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके कमेंट्स और फॉर्मेटिंग देखेंगे और लिंक्स, इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, टेबल्स ऐड कैसे करते हैं, ये आगे फर्दर क्लासेस में आपको पता लगता रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।